Yes, Saji, I'm audible. Yes, sir. Okay. Last topic क्या था? We were doing parallelogram law. Special cases start कर दिए थे हमने. सूरत. सर सिर्फ केस 1 लिखा था. केस 1 लिखा था, start नहीं किया था. Yes, sir. Explanation was start. Okay. लाइशा, आप जिस बैच में हैं वहाँ वेक्टर्स आप कर चुके हैं, राइट? Yes, sir. So we just have started lecture. ये vectors का third lecture. The first lecture we did unit vectors, and the second lecture we just have finished parallelogram. We are still doing some special cases on parallelogram. So for this lecture मैं बस ये expect करूँगा कि आपको parallelogram law कुछ basic आता हो कि if you have two vectors और आप इन दोनों vectors को vectorically add करो a plus b. So the magnitude of the resultant would be it's root over a square plus b square plus twice of ab cos theta. This is how we calculate the magnitude of the result. For the direction, we use this relation. Tan beta is b sin theta over a plus b cos theta. बस इतना बेसिक आना चाहिए आज के लेक्चर के लिए. मोहित, आई गेस आप ये भी कर चुके हैं, आपकी बैच में भी इतना हो चुका है. Yes, sir. Yes, sir. So let's continue with this thing. So let's start with case. देखो, जब मैं वेक्टर्स करा रहा था ना, मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि अगर एडिशन इतना लेंदी है तो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे कैसे. लाइक फॉर पैरेललोग्राम लॉ नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा होते हैं, कैलकुलेशंस बहुत लेंदी हो जाती है. तो कुछ स्पेशल केसेस हैं जिन स्पेशल केसेस में आपकी कैलकुलेशंस रिड्यूस हो जाएगी, बहुत रिड्यूस हो जाएगी. और जब हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको देखिएगा अच्छा ज्यादातर जगह यही स्पेशल केसेस. सो द केस वन इज इफ वेक्टर्स आर पैरेलल. If vectors are parallel. When I say that vectors are parallel, that means they're acting in same direction. This is vector A and this is vector B. If both the vectors are acting in same direction, then we say that vectors are parallel. Angle between the parallel vector is 0 degree. Vectors parallel and that means angle between them is 0 degree. आपको resultant vector R चाहिए, which is vector A plus vector B naught. So the magnitude of resultant vector R is it's root over A square plus B square plus 2AB cos 0. Cos 0 is 1, so you can write your R as root over. See, this is A square plus B square plus 2AB. Laisha, ये किसी का whole square है, right? Yes, sir. Cos 0 is 1, हाँ? So आप इसको किसी चीज का होल स्क्वायर लिख सकते हो. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB हो जाएगा. लाइशा, किसका होल स्क्वायर होगा? अच्छा लाइशा, मोहित, मैंने आज आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछूंगा. मुझे बाकी स्टूडेंट्स का तो आइडिया है, आप लोग सर आज फर्स्ट क्लास है ना मेरे साथ, तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा. मोहित, ये किसी का होल स्क्वायर है यार, किसका? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. Sir, A plus B whole square. Right, that's A plus B whole square. So see, this whole square will cancel the root and you will get the magnitude of resultant is A magnitude plus B. plus magnitude. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो. This R is not a complete vector, it's just magnitude of the vector. A is not a complete vector, it's just magnitude. आप ऐसे लिख सकते हैं magnitude of resultant vector R is the sum of magnitude of A plus the magnitude of B. So this is how we calculate the resultant vector, the magnitude of the resultant vector. It's magnitude of A plus magnitude of B. अब देखो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है. ये जो R है, R को आप लिख सकते हो A plus B, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं. It's magnitude of A, vector A plus vector B का magnitude. It's sum of the magnitude of A and magnitude of B. चलो अब सूरत कुछ हेल्प करेगी. सूरत, ये जो सम हम यूज कर रहे हैं, एडिशन के जो दो साइन यूज कर रहे हैं, दोनों सेम है या कुछ डिफरेंस है?
सॉरी सर, मैं कब क्वेश्चन समझ रही हूँ। ये जो दो हम साइन यूज कर रहे हैं ना एडिशन का, एक ये साइन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और एक ये साइन है, दोनों सेम एडिशन से कुछ डिफरेंस है दोनों, मतलब दोनों साइन में कुछ डिफरेंस है सूरत, और दे आर सेम। आई थिंक दे आर डिफरेंट। दे आर डिफरेंट, क्या डिफरेंस है इनमें एग्जैक्टली? सर जो वेक्टर ए एंड बी है वो मॉड्यूलस में है, तो उनके दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। नहीं नहीं, शॉर्ट चेंज है। लाइशा बताएंगे। लाइशा आप सर बताओ। मैं हाँ, कोई और बता रहा है? अर्पित आप बोले। सर मैं ट्राई करूँ। हाँ करो। सर जो ए मॉड्यूलस में सर ए प्लस बी, सर ये वेक्टर एडिशन है और सर यहाँ साइड में मैग्नीट्यूड ऐड हो रहा है। क्या बात है, देखो गुड। ये जो ए है, ये जो प्लस साइन आप यूज कर रहे हो, ये बता रहा है जो वेक्टर सम, राइट? वेक्टर सम। और ये जो आप लिख रहे हो, दैट्स ओनली मैग्नीट्यूड, सो दिस इज ओनली एल्जेब्रिक सम, दैट्स वेक्टर सम एंड दिस इज एल्जेब्रिक सम। ये डिफरेंस है कि यहाँ वेक्टोरिकली ऐड कर रहे हो, मतलब वेक्टर सम करो या एल्जेब्रिक सम करो, रिजल्ट सेम आएगा। ये हमेशा ट्रू नहीं होता, ये सिर्फ तब ट्रू होगा व्हेन यू हैव वेक्टर्स व्हिच आर पैरेलल। So this is true only for parallel vectors. This is true only for parallel vectors. So this is true only if your vectors are parallel. अगर vectors parallel नहीं है तो आप इसे use नहीं कर सकते. That's the first thing. अब देखो ये easy कितना हो गया, आप कर क्या रहे थे, आप vectorically add कर रहे तो result क्या है, algebraic sum के equal. That means if you have two vectors which are parallel, then you can add them up algebraically. No need to use the entire parallelogram law. Even after using parallelogram law, you will get the same result. And what's the same result? आप उनको algebraically add कर दो, result same आएगा. Direction of resultant देखो, direction of resultant would be same as that of vector A and B now. Is it clear, Mohit? Yes, sir. Okay, so let's do one numerical. Huh? So इसमें direction के लिए मैं statement लिख देता हूँ. Direction of resultant is same as that of सर एक चीज रिकॉल करवानी थी, जैसे जो वेक्टर होता है वो बस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा, तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा, तो हमने डायरेक्शन में नेगेटिव वेक्टर आएगा. को ही बस पॉजिटिव कर देंगे तो फिर वो मैग्नीट्यूड बन जाएगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं देखो दाशा, जैसे एक बार आपको एग्जांपल दूं, मैंने आपसे, एक मिनट मैं ये कंप्लीट कर दूं स्टेटमेंट. चलो ये हो गया. एक फोर्स दे रहा हूं मैं आपसे कहता हूं -10 I कैप न्यूटन है, राइट? तो सांची ये नेगेटिव साइन आ रहा है, ये नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है दैट योर फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, बट इफ आई टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस साइन वेक्टर, तो ये कितना मिलेगा? दैट विल बी 10 न्यूटन. ये डिफरेंस है. तो ये माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा था, कंप्लीट वेक्टर है तो नेगेटिव है, बट जैसे ही मैंने मैग्नीट्यूड रख दिया, नेगेटिव साइन खत्म हो गया. सर तो ये जरूरी है कि हमेशा ये दोनों सेम होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओके सर. सिर्फ नेगेटिव हटेगा. अच्छा अब देखो इसका एग्जाम्पल, एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं, ये थोड़ी सी मेरी हेल्प मोहित कर देगा. सो मोहित ये आपको so you have a force F1, this is east, this is west, this is north, this is south. You have a force F1 which is 2 Newton, ये east के along act करें. एक और force है F2 which is 3 Newton, ये भी east के along act कर रहा है. Both the forces are acting in same direction. मैं आपसे कहता हूँ resultant force कैलकुलेट कीजिए which is the sum of vector F1 plus vector F2. अब मोहित आप मुझे बताओ, क्या पूरा पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करने की जरूरत है, और आई कैन डायरेक्टली ऐड देम? Sir, we can directly add them. We can directly add them, right? So that will be 2 plus 3 equal to 5. So जहां भी आपको पैरेलल वेक्टर्स मिल जाए, no need to apply the entire parallelogram law. You can directly add up their magnitudes. आप उनके magnitudes को directly add कर. Let's take another case 2. Instead of parallel vectors, if you have two vectors which are anti-parallel,
if vectors are anti-parallel. If you have anti-parallel vectors, means this is vector A and this is vector B. And both are acting in opposite directions. So theta here is 180 degree. If vectors are acting in opposite direction, that means angle is 180 degree. मैं आपसे फिर से कहता हूँ, just get the value of resultant vector. Resultant vector is vector A plus vector B. Now अप्लाई कर दो पैरेललोग्राम लॉ अगेन. सो R will be, लाइशा जल्दी से बताओ मुझे मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट क्या होगा? A square plus B square plus 2AB cos theta. Theta is 180, right? 180. Okay, how much is cos 180? Cos 180 कितना होगा बच्चे? Cos 180 is -1, so it's minus of 2AB. So I Minus can 1. simply write this as it's root over A minus B whole square. So this is simply R is A minus B. So the magnitude of resultant is A minus B. ये resultant का magnitude है. इसे आप further ऐसे भी लिख सकते हो. It's mod of R. It's mod of A minus mod of B. और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो resultant vector को vector A plus vector B is magnitude of A minus magnitude of B. अच्छा, ये अब यहाँ पर मेरी हेल्प फिर से मोहित करेगा. मोहित मुझे इस दोनों प्लस के साइन में डिफरेंस बताओगे प्लीज? क्या डिफरेंस है इस प्लस में और इस माइनस साइन में? ये कौन सा सम है मोहित? दिस इज वेक्टर सम और दिस इज अलजेब्रिक सम? सर वेक्टर सम. कैसे पता चल रहा है मोहित कि वेक्टर सम है अलजेब्रिक सम नहीं है? इट्स बिकॉज वी आर एडिंग टू वेक्टर्स है ना. वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर रहे हो मींस वेक्टर सम होगा. और ये कौन सा सबट्रैक्शन है? वेक्टर सबट्रैक्शन और अलजेब्रिक सबट्रैक्शन? सर अलजेब्रिक सबट्रैक्शन. अलजेब्रिक सबट्रैक्शन. कैसे पता चल रहा है? बिकॉज वी आर सबट्रैक्टिंग मैग्नीट्यूड्स ओनली and magnitude of a vector is a scalar, so that's algebraic subtraction and that is vector subtraction. ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इस संडे तुम्हारी जो टेस्ट मिलेगा उसमें इन्हीं से अच्छा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा. छोटी छोटी चीजों से पूछ लेता है आपसे. जैसे एक बार क्वेश्चन आ गया था कि वो आपसे कहता है ये इक्वेशन दे दिया, कहता है ये कब ट्रू है? दिस इज ट्रू. इसको देखकर आप बता सकते हो कि एंगल कितना होगा वेक्टर्स में? 180 डिग्री. तो आयुषी बहुत ज्यादा नहीं किया, जस्ट पैरेलल वेक्टर्स डिस्कस किया. अभी आ जाऊंगा लास्ट स्लाइड. एक्सक्यूज मी सर. यस सच. सर इसमें cos 180 दिया होता तो फिर ऐसी वैल्यूज लर्न करनी पड़ती ना. बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने 120 याद कराया था ना, ऐसी 180 और याद करो. दैट्स -1. अब आपको रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए. रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन उस वेक्टर के डायरेक्शन के इक्वल है जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा. सो अगर ए का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है तो रिजल्टेंट वेक्टर ए की डायरेक्शन में जाएगा. तो आप ऐसे लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R is same as that of vector having greater magnitude. जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिजल्टेंट वेक्टर एग्जैक्टली उसी की डायरेक्शन में जाएगा. जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल देता हूं, Ayushi, is it clear this second case? Yes, sir. Okay, so this is my force F1, which is 1 Newton. This is acting towards east. This is another force F2, which I say is 5 Newton, and this is acting towards west. So let's calculate the net force. The net force is the vector sum of F1 plus F2. So आप ऐसे लिख सकते हो. अब इसको मुझे ये बताओ आयुषी, इसको मैं क्या लिखूंगा? I will write this as F1 minus F2 or F2 minus F1. Yes आयुषी, इसको मैं F1 minus F2 लिखूं या F2 minus F1? Sir, I don't know. Sorry आयुषी, मैं सुन नहीं पाया.
सर आई डोंट नो। नो, अरे अरे, देखो देखो देखो, इफ वेक्टर, अब तो आप ही सॉल्व करेंगे। इफ वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आप ऐड तो करोगे वेक्टोरिकली, बट वो एक्चुअल में सबट्रैक्ट हो जाता है। और सबट्रैक्ट कैसे करते हैं? ग्रेटर में से स्मॉलर सबट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ बताओ आयुषी, दोनों देखो F1 और F2, दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शंस और ऑपोजिट डायरेक्शंस। आयुषी अनम्यूट कर लो तो। सर ऑपोजिट डायरेक्शंस। ऑपोजिट डायरेक्शंस। मैं आपसे कह रहा हूँ वेक्टोरिकली ऐड करो, बट एल्जेब्रिकली वो ऐड होगा या सबट्रैक्ट हो जाएगा? सर सब्ट्रैक्ट। इट विल बी F2 माइनस F1 और F1 माइनस F2। ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है हमेशा। सर F2 minus F1. F2 minus F1. How much is F2 minus F1? That's 5 Excuse me, minus. sir. Yes, Arpit. Sir, like here in this sir case, we know that the forces are in opposite direction. तो सर हम इसमें बार बार लिख ही क्यों रहे सर? ऐड करना सर, वो कंफ्यूजन हो जाता है ना, मतलब ऐड लिखना जरूरी है because we are adding vectorically. बट सर हमें डायरेक्टली देख के पता लग रहा है कि वो ऑपोजिट में, तो सर हम माइनस नहीं कर सकते कि ना, मतलब यहाँ तुमने अगर ऐसे लिख दिया ना अर्पित, इज अ टोटली डिफरेंट ऑपरेशन। अगर तुम ऐसे लिखना चाह रहे हो, या अगर Yes, ऊपर ये वेक्टर, बोला। ना ना, दैट्स अ टोटली डिफरेंट ऑपरेटर। ओके दैट्स सबट्रैक्शन, वेक्टर सबट्रैक्शन, जो अभी आता ही नहीं है, ओके हमने करा ही नहीं है। सो डायरेक्शन मुझे सूरत बताएगी। डायरेक्शन क्या होगा सूरत 4 न्यूटन का? इट विल एक्ट टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स वेस्ट। सूरत वेस्ट। west, because resultant will act in the direction of greater vector. So that's 4 Newton due west. So ये case 2 था, अगर vectors anti-parallel. We can take one more case. अच्छा, एक चीज और interesting है, एक चीज याद रखिएगा. This resultant is the maximum resultant. So if you have two vectors which are acting in same direction, तो जो भी resultant आएगा, that is the maximum possible resultant. Maximum value होती है resultant की. This is the minimum result. तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि दो वेक्टर्स हैं and the resultant is minimum, that means मैंने आपको दिया हुआ है that vectors are acting in opposite directions. मैं आपसे कहता हूं you have two vectors and they have maximum resultant, that means they're acting in same directions. Case 3. Case 3 में मैं आपसे कहता हूं vectors are parallel. Case 3 में we say that vectors are parallel. When I say vectors are parallel, that simply means they're acting in same directions. That's vector A and vector B, both are, sorry, parallel, perpendicular. Vectors are perpendicular. This is vector A. This is vector B. Angle 90 degree. ये resultant vector R है. It's vector A plus vector B. So अगर मैं magnitude लेता हूँ यहाँ पर, so it will be root over A square, B square, 2AB cos 90. Cos 90 is 0. So आप simply R को लिख सकते हो. It's root over A square plus B square. So ये resultant का magnitude है root over A square plus B square. डायरेक्शन जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये रिलेशन था डायरेक्शन के लिए tan बीटा. यू कैन राइट दिस एज b sin. यहाँ आपने पैलोग्राम कंप्लीट कर लिया और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर r है. सो tan बीटा इज b sin 90 ओवर a plus b cos 90. cos 90 is 0, sin 90 is 1. So tan बीटा is it's b by a now. ऐसे आप tan बीटा निकाल सकते हैं. सो ये स्पेशल केसेस हैं जहां आपकी कैलकुलेशंस बहुत नहीं रिड्यूस होती, बट थोड़ी बहुत रिड्यूस हो जाएगी. चलिए जल्दी से इसे लिख लीजिए. लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस कांसेप्ट. तो वो लास्ट वाला tan बीटा कैसे निकालना समझा. tan बीटा जो आपने डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला याद किया था पैरेललोग्राम लॉ में, जरा चेक करो साची. पैरेललोग्राम में डायरेक्शन के लिए क्या था? b sin थीटा by a plus b cos यस थीटा. सर, वो तो याद है. थीटा की जगह 90 रख दिया तो sin 90 is 1, cos 90 0. ओके सर. एक्सक्यूज मी सर. यस लाइशा. सर वेक्टर सम और अलजेब्रिक सम क्या होता है? देखो अगर आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज है तो उनको जब आप ऐड करोगे तो उनको आप ऐड वेक्टोरिकली ही करोगे. और वेक्टोरिकली ऐड करने के कई रूल्स, जैसे फर्स्ट रूल है पैरेललोग्राम लॉ. तो जब आप दो वेक्टर्स को यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऐड कर रहे हैं देन दैट इज वेक्टर्स. ओके लाइशा.
अब यस सर। पैरेललोग्राम लॉ में ये रिलेशन तो याद होगा मैग्नीट्यूड के लिए। जब आप ये रिलेशन यूज करते हो, इसमें ये जो प्लस का साइन आप ले रहे हैं ना, ये प्लस का साइन आपका नॉर्मल एडिशन है, जो आपने क्लास 10 तक जो एडिशन सीखा है, ये वो एडिशन है, इसको मैं एल्जेब्रिक सम कहता हूँ। और जब आप यहाँ लिखते हो, इट्स नॉट एन एल्जेब्रिक सम, इट्स अ वेक्टर सम। इसे करने के कई स्टेप्स हैं। तो जहां आप पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर रहे हो, जहां आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, दैट्स अ वेक्टर सम। जहां आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड करते हैं, दैट इज एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मींस जो नॉर्मल एडिशन आपने सीखा है, 1 + 2 3 होता है, वो आपका एल्जेब्रिक सम है। इतना लिखिए। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके ऊपर। अच्छा, मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था सूरज, जिसमें दो फोर्सेस का रिजल्टेंट भी दिया था और मैग्नीट्यूड का सम भी दिया था, 18 और 12 शायद, 18 और 15। सूरज लास्ट न्यूमेरिकल किया था पैरेललोग्राम लॉ पर, प्लीज याद दिलाओ मुझे। सर हमें एंगल निकालना था। एंगल निकाला था 120 डिग्री। यस सर, थीटा फिर 120 डिग्री आया था। ओके, चलो अब ये स्पेशल केसेस हो गए, अब आप कुछ ढंग के न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। Excuse me, sir. यस अर्पित। Sir, are these derivation important? मतलब सर हमको इनको भी करना पड़ता है अच्छे से। हाँ 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 अर्पित, मतलब ये ना तुम्हारा फाउंडेशन है। अब ऑब्वियसली एंट्रेंस में आपसे डेफिनेशंस कोई नहीं पूछेगा, डेरिवेशंस, लेकिन आपको आनी चाहिए। कई न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जहां इनके कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाएंगे, तो यू शुड नो देम। ये हो जाए तो मुझे बताओ, स्लाइड चेंज करते हैं, बहुत तेजी से करते हैं। हो गया इतना? फिर बस थोड़ा सा लगेगा। देखो, ट्रायंगल लॉ में ना बहुत कुछ नहीं है, लाइक ट्रायंगल लॉ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं बनती। जो भी थोड़ा बहुत टफ न्यूमेरिकल होगा वो पैरेललोग्राम लॉ से बनेगा। अभी तक तो हमने पैरेललोग्राम लॉ पर सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चीजें करी थी। अब थोड़ा थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड करना शुरू करते हैं पैरेललोग्राम। Yes, आप sir. लिख लो। ओके ओके, मोहित हो गया था? यस सर। और आप लिखते जाओ और पूछते जाओ, जहां आपको डाउट्स आ रहे हैं वहां पूछते जाओ। जिस लाइन में, जिस पॉइंट पर आपको लगता है नहीं समझ में आया, आप पूछिए, क्योंकि आपके जो डाउट्स होंगे वो आपको न्यूमेरिकल्स में दिख जाएंगे। जहां भी आपके डाउट्स हैं, वो डाउट्स एग्जैक्टली आपको दिखने लगेंगे। हाँ जी, स्लाइड चेंज करूँ अब? यस सर। सूरत, मोहित हुआ इतना? स्लाइड चेंज करें? जस्ट अ सेकंड सर। ओके, अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम लॉ। धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। So the question is the sum of
मैग्नीट्यूड, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए, टू फोर्सेस acting at a point is 18 Newton. And magnitude of the resultant is 12 Newton. If resultant makes an angle of 90 degree with force of smaller magnitude, calculate magnitude of two forces. आपको दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो देखिए आपको दो फोर्सेस दिए। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा इशू आएगा कि इसमें दो टर्म्स यूज कर रहा हूँ। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड इज दिस एंड द रिजल्टेंट इज दिस। दोनों में एडिशन है। रिजल्टेंट का मतलब भी होता है जब वेक्टोरिकली ऐड कर कर आता है, और सम ऑफ मैग्नीट्यूड है। सो देखो दोनों में फर्क क्या है, 12 न्यूटन और 8 न्यूटन में। ये मैग्नीट्यूड्स को एल्जेब्रिकली ऐड कर कर आ रहा है, इट्स नॉट द रिजल्टेंट। ये वेक्टोरिकली ऐड कर कर आ रहा है। सो अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि दैट यू हैव अ फोर्स, पहले तो आप फोर्सेस ड्रॉ कर लो। दो फोर्सेस हैं आपके पास। ये क्वेश्चन पहली बार AIEEE में आया था। AIEEE जेई से पहले इस एग्जाम को AIEEE कहते थे। उसके बाद ये बहुत रिपीट हुआ है। दिस इज वेक्टर A, this is vector B, they're acting at an angle theta. तो आप एक वेक्टर A के पैरेलल साइड ले सकते हैं, वेक्टर B की पैरेलल, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, एंड दिस इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर R। ये जो एंगल है ना, जो रिजल्टेंट वेक्टर E के साथ A के साथ बना रहा है, दैट इज द 90 डिग्री एंगल। ये बीटा है विच इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल होगा। और इसको AB की जगह मैं F1 और F2 लिख देता हूँ। दिस इज फोर्स F1 एंड दिस इज द फोर्स F2। और जब आप इसको ऐड करोगे वेक्टोरिकली, देन यू विल गेट वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। अब डिफरेंस समझो, ये जो 12 न्यूटन है दैट इज द रिजल्टेंट, दिस F इज द रिजल्टेंट। सो ये F आपको गिवन है, इट्स 12 न्यूटन, दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। ये जो 18 न्यूटन दिया है, ये वेक्टोरिकली ऐड कर कर नहीं आ रहा है, मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर कर आ रहा है। लाइशा, मैग्नीट्यूड्स को कैसे ऐड करते हैं, वेक्टोरिकली और एल्जेब्रिकली? सर algebraically. Algebraically. So it's the sum of magnitudes of F1 and F2. F1 और F2 के मैग्नीट्यूड का सम है 18 न्यूटन। अब देखिए ये इस तरह से मैग्नीट्यूड लिखने में बहुत टाइम जाता है, so I can just simply write this as F1 plus F2. The magnitude of F1 plus magnitude of F2 is 18. That's equation number. This is how we calculate magnitude. Magnitude of F1, magnitude of F2 is 18. Excuse me, sir. Yes. So beta 90 के सारे parallelogram में diagonal का It's given. It's given. If resultant makes an angle of 90 degree with तो force सर of smaller magnitude. 90 कैसे बनेगा parallelogram में diagonal का angle? अच्छा मैम, ओके ओके ओके, मैंने डायग्राम सही बना देता हूँ। हो सकता है अगर पैरेललोग्राम का एंगल ऑब्ट्यूज है ना, तो डायगोनल परपेंडिकुलर हो सकता है। So this is
F1. This is F2. This is beta, which is 90 degree. अगर पैरेललोग्राम के जो दोनों वेक्टर्स हैं दोनों साइड्स में एंगल ऑब्ट्यूज है तो डायगोनल परपेंडिकुलर हो सकता है, दैट्स थीटा। ठीक है, तो इनके मैग्नीट्यूड्स का सम 18 है और वेक्टर्स को जब आप ऐड करोगे रिजल्टेंट 12 आएगा। तो आपका काम है किसी तरह से F1 और F2 कैलकुलेट करना। सूरत F कैसे कैलकुलेट करें? कोई रिलेशन है हमारे पास टू गेट द वैल्यू ऑफ F? If F is F1 plus F2, then how you calculate the magnitude of F? Surat. Ayushi? Force is under root a square plus b square yes, so that's root plus over 2ab cos yes, theta. F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. See, F is given, F is 12, so I can substitute the value of 12 here. F is not 18, F is the resultant vectorically sum कर जो आ रहा है, so that's 12, which is root over F1 square, F2 square, 2F1, F2 cos theta. That's equation number 3. मोहित जरा काउंट करो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं इस इक्वेशन नंबर 3 में, कितनी अननोन है इक्वेशन नंबर 3 में मोहित? जस्ट काउंट द नंबर ऑफ अननोन्स हियर। Yes. Sir, 2. 3. F1 unknown, F2 unknown, theta unknown. You have 3 variables here. अब आपके रिजल्ट में 3 वेरिएबल्स नहीं हो सकते। एट मोस्ट कितने वेरिएबल्स होंगे? 2 वेरिएबल्स होंगे। और अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 हैं, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं। थर्ड वेरिएबल का मतलब एक इक्वेशन और लिखनी होगी। tan बीटा से आप थर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं। tan बीटा इज b sin theta over its a plus b cos theta. बीटा कितना गिवन है मोहित? हाउ मच इज बीटा? Beta is 90, so that is tan 90 is b sin theta over a plus b cos theta. tan 90 को आप इनफाइनाइट लिख सकते हैं, इन्फिनिटी इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी इज b sin theta over a plus b cos theta. अब देखो इन्फिनिटी अगर आ जाए तो उसे आप सॉल्व कैसे करते हो? थ्रू आउट फिजिक्स कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर इनफाइनाइट आ जाए ना, देन सब्स्टिट्यूट इट 1/0। इसे आप 1/0 रख दीजिए। सो इट्स b sin theta over a plus b cos theta. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई दे, इट्स a plus b cos theta is equal to 0. सो दैट्स योर थर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज करो और इसे यूज करो, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक चीज और है, मैंने बी भी लिख दिया ना हर जगह, ये बी नहीं है, F1 F2 है। सो इट्स F2 sin theta by F1 plus F2 cos theta, F2 sin theta over F1 plus F2 cos theta, so that's F1 plus F2 cos theta. So यहां से आप cos theta कैलकुलेट कर सकते हो, ये F2 cos theta डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो। F2 cos theta will be minus of F1. That's my equation number 4. अब आप यहाँ देखो, बस ये इतनी इक्वेशन है, इन्हें सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। इतना आप लिखो, कोशिश करो खुद सॉल्व करने की। 2 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इक्वेशन नंबर 4। आप F1 F2 आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो 2, 3 और 4 यूज करके। इतना लिखो, जिस स्टेप पर अटक जाऊं आप मुझे दोबारा बताओ। और B की जगह F2 लिख देते हैं, A की जगह F1 लिख देते हैं यहाँ।
सर अगर हमने 0 को f2 sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर तो वो पूरा 0 हो जाएगा। हाँ तो 0 हो गया। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 से मल्टीप्लाई हुआ। राइट साची? करो 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 करो, जल्दी लिखो। क्वेश्चन लिखिए, यहां तक कैलकुलेट कीजिए। मोहित जहां नहीं समझ में आ रहा वहां पूछो। देखो फिजिक्स मेमोराइज करने की चीज नहीं है, फिजिक्स आप ऐसे ही सीखते हो। डाउट्स आएंगे, डिस्कस करोगे, आप दोबारा पूछोगे, फिर धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे। इतना हो जाए मुझे बताओ, स्लाइड चेंज करना है। यस सर। मोहित, लाइशा, चेंज करूं स्लाइड? Yes, sir. सूरत, यस सर। चलो इसको सॉल्व करिए। अब ना 4 को 3 में सब्स्टिट्यूट करना, थोड़ी सी कैलकुलेशंस खुद करो। ट्राई टू सब्स्टिट्यूट 4 इन 3, देखो क्या सिंप्लीफिकेशन मिलता है। You will get an equation in F1 and F2 only. A very simple equation in F1 and F2. मोहित यहां तक आया आपके समझ में? यस सर। मोहित रिस्पॉन्ड किया करो, और जहां ना आए वहां पूछा करो। कि ये सब्जेक्ट ऐसा है ना जो सिर्फ आप डिस्कशन से सीख सकते हो, सिर्फ लेक्चर सुन के नहीं होता। अगर लेक्चर सुन के होता है तो यूट्यूब लेक्चर से फिजिक्स हो जाया करती, या तो आप कई जगह अटकोगे। और मुझे बताओ इस सब्स्टिट्यूशन के बाद मोहित इक्वेशन क्या आ रही है? व्हेन यू सब्स्टिट्यूट 4 इन 3, इक्वेशन क्या होगी? चलो भाई मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ये 12 हो गया 3 में, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। f2 cos थीटा की जगह आई एम सब्स्टिट्यूटिंग माइनस ऑफ f1, so that's root over f1 square plus f2 square plus twice of f1। instead of f2 I'm writing minus of f1, तो ये minus f1 हो जाएगा। so we have, okay Arpit, root over f1 square plus f2 square minus 2f1 square. So now we have 12 is root over f2 square minus f1 square. That's equation number 5. So you have equation number 5 and you have equation number 2 here. You can get the value of f1 and f2 using 2 and 5 now. So let's solve 2 and 5. From equation 2, we have f1 plus f2 is equal to 18. So I can write that f2 is 18 minus f1. That's f2. Let's call this as equation number 6. We can substitute 6 and 5. When we substitute 6 and 5, we get 12 is root over 18
minus f1 square minus f1 square. So we have 12 is 18 square which is 324. 18 square 324 ही होता है या मैं कैलकुलेटर यूज करूं? 18 square 18 into 18 is 324, right? 324. Then this is plus f1 square. F1 square. It's minus of 36 f1. Then you have minus of f1 square. This f1 square will cancel this f1 square. So you are left with 12 is root 324 minus 36 f1. Next, you can take square on both the sides. We'll get 144 is 324 minus 36 f1. So we can write 36 f1 is 324 minus 144. 36 f1 is 324 minus 144. So that is कितना रह गया? 0, 8, or 1, 180. So your f1 is 180 by 36. So it gets cancelled out 5. So f1 is 5. So if your f1 is 5 Newton and f2 is 18 minus f1, so your f2 comes out to be 18 minus 5, your f2 comes out to be 13 Newton. So ये आपकी forces हैं f1 और f2. इतना लिखिए और मुझे doubts बताना शुरू कीजिए. सर अब इसको मैग्नीट्यूड में भी चेंज करना है? नहीं, ये मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट हुआ है जो आपने कैलकुलेट किया है ना, दिस वन 13 and 5. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ f1 and f2. सर तो फिर इसे उसने मॉड्यूलस और वो लगा के क्यों नहीं रखा है? दोनों तरह से लिख सकते हैं आप. सिर्फ f1 लिखोगे तब भी मैग्नीट्यूड, आप मॉडुलस लिखोगे तब भी मैग्नीट्यूड. चॉइस है आपकी. मॉडुलस लगा के ना थोड़ा लिखने में टाइम लगता है, इसीलिए मैं मॉडुलस नहीं लगाता. अदरवाइज आपकी चॉइस है, आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, सेम थिंग, दोनों मैग्नीट्यूड. कितना हो जाए मुझे बताओ, स्लाइड चेंज करते हैं. विल कम टू नेक्स्ट वर्ड. आयुषी क्लियर है यहाँ तक? लिखा आप लोगों ने? स्लाइड चेंज करूं मैं? यस सर. Yes, sir. चलो. सर सो बाकी टाइप के क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट्स में मिल जाएंगे. इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज आफ्टर पैरेललोग्राम लॉ, नेक्स्ट वी हैव ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो लेट्स ट्राई टू कम फिनिश ट्रायंगल एंड पॉलीगन लॉ टुडे. अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा. इतना लिखो, आई विल चेंज द स्लाइड. Now, to add two vectors after parallelogram law, you can also use triangle law. Triangle law of vector addition. Now, let's see difference क्या है parallelogram law, triangle law में. बहुत minute सा difference है दोनों में.
First thing, conditions to use triangle law. फर्स्ट कंडीशन सेम होती है, यहां भी आप पैरेललोग्राम लॉ में आप दो वेक्टर्स ऐड कर रहे थे, ट्राइंगल लॉ यूज करके भी एट अ टाइम आप टू वेक्टर्स ऐड कर सकते हो. इट डील विद ओनली टू वेक्टर्स एट अ टाइम, टू वेक्टर्स एट अ टाइम. इसमें एक कंडीशन है, पैरेललोग्राम लॉ में आपके जो वेक्टर्स थे दे वर कोइनिशियल, मींस दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता था. बट जब आप ट्राइंगल यूज करते हो देन योर वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर. इन ट्राइंगल वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर. जब आप ट्राइंगल लॉ यूज करोगे सो वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर. अब देखो सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, यहां मैं सेम ऑर्डर लिख रहा हूं. When I write that vectors को बहुत ढंग से देखना, बार बार मैं ये लॉजिक यूज करता रहूंगा. कोइनिशियल, कोइनिशियल means the vectors have same starting point. Vector A or vector B, they have same starting point. That means they are कोइनिशियल. कोइनिशियल वेक्टर्स का मतलब यही है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा. बट अगर मैं आपसे कह रहा हूं दैट वी हैव फ्यू वेक्टर्स व्हिच आर इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मींस हेड एंड टेल विल कोइंसाइड. दिस इज वेक्टर A and this is vector B. If vectors are in same order, then head of one vector will coincide with the tail of another. Head same order means head of one vector will coincide with tail of another. So एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कोइंसाइड करेगा, then we will say that vectors are in same order. Next देखिए opposite order. When we say vectors are in opposite order, that means head of one vector will coincide with the head of another. Head of one vector will coincide with head of another. So if head and head are coinciding, that means your vectors are in opposite order. So I take this vector and I take this vector. Here head and head are coinciding, so these two vectors are in opposite order. तो जब भी आपको कोई वेक्टर गिवन होंगे, दो वेक्टर्स, या तो वो कोइनिशियल होंगे, या वो सेम ऑर्डर में होंगे, या वो ऑपोजिट ऑर्डर में होंगे. ये आपका चेक करने का काम आपका होगा. लाइक मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दे रहा हूं, दिस इज वेक्टर ए, this is vector B and this is vector C. मोहित मुझे बताओ, out of A, B and C, which two vectors are coinitial? Out of A, B and C, which two vectors are coinitial, Mohit? Sir, vector A and B. And which two vectors are in same order? Sir, vector A and B. Which one, Ayushi? Sir, vectors A and C. A and C. मोहित क्या लगता है? आयुषी ठीक कह रही है? A and C are in same order? हाँ जी मोहित. Yes sir. क्यों A और C सेम ऑर्डर में? सर वेक्टर ए की हेड पे सी का टेल है. Very good. Which two are in opposite order, Laisha? Sir, can you repeat your question? Which two vectors are in opposite order? Out of A, B and C, which two vectors are in opposite order? Vector B and C. Vector B and C, right? Because head and head are coinciding. So for triangle law, your vectors should be in same order, means head and tail should coincide. So the triangle law says if two vectors acting at a point are represented
in magnitude and direction. Magnitude and direction by sides of triangle in same order. Sides of triangle in same order, then their resultant can be represented by closing side of triangle in opposite order. तो जो भी रिजल्टेंट होगा उसे आप ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट करेंगे एंड यू विल टेक दैट क्लोजिंग साइड इन एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑर्डर. दैट्स ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. लाइक मैंने आपको ये दो वेक्टर्स दे दिए. हमेशा ट्राइंगल लॉ यूज करने के लिए आप सेम ऑर्डर के वेक्टर्स ढूंढना. These two vectors are in same order. Head of one vector coincides with the tail of another. This is vector A and this one is vector B. And this is the angle between them. This is the angle between them. Angle between them is theta. एक और interesting चीज है. When we take angle between vectors, we take angle between the direction of their arrows. Like this is the direction of arrow of A and this is the direction of arrow B. Angle between vector A and vector B is the angle between their arrows. This is Excuse not me, the sir. angle Could between you A and please B. repeat? I got disconnected. Yes. So Surat, when we take triangle law, we take two vectors which are in same order. This is vector A and vector B. These two vectors are in same order. The angle between vector A and vector B is the angle between their arrows. Like this is the direction of arrow of B and this is the direction of arrow of A. So this is the angle between vector A and vector B, not this one. It's not the angle between A and B now. This angle between the arrows is the angle between vector A and vector B now. Now, resultant जो vector होगा, that resultant vector can be represented by the closing side of the triangle taking in opposite order. So you can say head and head is coinciding. That means these two vectors are in opposite order. So that is your resultant vector R. इन दो vectors को आपको add करना है using parallelogram, triangle law. Difference क्या है? In parallelogram law जो दो vectors थे, they were co-initial, but now these two vectors जिन्हें आप add कर रहे हो, they are in same order. Was represented by the diagonal of the parallelogram, but now the resultant can be represented by the third side of triangle, third closing side of the triangle. Next is आपको magnitude calculate करना है. Now from now onwards, step by step derivation same है. एक स्टेप वही होगा जो स्टेप आपने पैरेललोग्राम लॉ में यूज किया था. इसे हमने P कहा था, इसे हम Q कहते हैं, इसे हमने S कहा था, इसको हमने N कहा था. एक लाइन सेम है जो पैरेललोग्राम लॉ में थी, सेम एज पैरेललोग्राम लॉ. एक लाइन, एक स्टेप, कहीं कोई चेंज नहीं है. सो आई एम नॉट रिपीटिंग एवरीथिंग. तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स. अर्पित, क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट? यस सर. मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट का? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. 2ab cos थीटा. साची, रिलेशन क्या था डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए tan बीटा के लिए? साची. Yes, sir. So B sin theta upon A plus B cos theta. A plus B cos theta. So this is how we calculate the direction. Tan beta is B sin theta over A plus B cos theta now. So this is it. ये आपका triangle law of vector addition. चलिए लिख देना. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर ये एंगल वाला पार्ट फिर से समझाना है सर. वो बाहर वाला एंगल के लिए है, मतलब समझ नहीं आया. जब भी हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल लेते हैं ना, तो हम एंगल लेते हैं उनके एरो के डायरेक्शन में. ये फर्स्ट वेक्टर का एरो का डायरेक्शन है, ये सेकंड वेक्टर का एरो का डायरेक्शन है. दोनों एरोस के बीच का एंगल होगा. ये नहीं, ये एरो का डायरेक्शन नहीं, एरो तो आगे जा रहा है, इसको नहीं लेंगे. हमेशा आप एरोस के बीच में लेते हैं.
सर तो बस फिगर का ही डिफरेंस है, पैरेललोग्राम सिर्फ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है और कोई नहीं। बट उस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से फर्क पड़ जाएगा। जब आपको क्वेश्चंस दिखेंगे तो आपको वहां बैठकर डिसाइड करना होता है कि वेदर यू विल यूज ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। बट सर फॉर्मूलाज तो सेम ही है, तो फिर फॉर्मूला सेम है बट ज्योमेट्रिकल डिफरेंस रिप्रेजेंटेशन अलग है। आपके पास ऑब्जेक्टिव्स में बना कर दे सकता है, आपको ट्रायंगल ही बनाकर दे देगा, या आपको कुछ ऐसा देगा जहां आपको डिसाइड करना होगा कि ट्रायंगल बनाना है या पैरेललोग्राम बनाना है। सो दिस डिफरेंस शुड बी वेरी क्लियर। न्यूमेरिकल वैल्यू वुड बी सेम, आप सही कह रहे हो, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, बट जस्ट यूजिंग दिस ज्योमेट्री बहुत ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। इतना लिख लो तो मुझे बताओ, मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। लाइशा क्लियर हुआ ये? Yes, sir. excuse me सर। जी अमित। सर मेरे को सर एक बार वो भी डाउट था सर, जो हमारा सर डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला है, तो सर उसमें हम ए और बी मतलब कैसे लेना, मतलब वो बता देना सर एक बार। जिस वेक्टर की रिस्पेक्ट में भी आप बीटा डिफाइन करोगे ना अर्पित, वो हमेशा ए है। जिसकी रिस्पेक्ट में भी आपने, मैं भी एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, जिसके रिस्पेक्ट में भी आप बीटा लेंगे दैट इज ऑलवेज ए, दूसरा वाला बी हो जाएगा। ओके। एक्सक्यूज मी सर। जी साची। सर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जिसमें tan बीटा नहीं निकालना होगा और सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब हर अगर अगर उसने लिख दिया कि कैलकुलेट ओनली मैग्नीट्यूड, देन इट्स अ डिफरेंट इशू। अदरवाइज अदरवाइज हमेशा tan बीटा निकालें। निकालना होगा, बिकॉज वेक्टर कंप्लीट तभी होगा जब आप डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। सूरज स्लाइड चेंज करूं? यस सर। ये आप लोग लिख चुके हैं ना सब? चलिए, सो दैट, और जितने भी हमने स्पेशल केसेस किए थे वो सारे स्पेशल केसेस यहाँ भी वैलिड होंगे। ऑल स्पेशल केसेस of parallelogram law are also valid in triangle law. पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर, सब कुछ आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। सो देखो अर्पित, आपका जो क्वेश्चन था, लेट्स से मैं पैरेललोग्राम लॉ का आपको ये दिखाता हूँ, F1 प्लस F2, और ये आपका रिजल्टेंट है। अब देखो बीटा आप किसी भी वेक्टर के साथ दे सकते हो। अगर आप F1 के साथ बीटा ले रहे हो देन F1 इज ए, लेकिन आप मुझसे कहते हो मैं F1 के साथ नहीं लेता, मैं F2 के साथ लूंगा, बस इतना सा डिफरेंस आता है। सो दिस इज योर रिजल्टेंट फोर्स F, दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B। आप कहते हो मैं इसके साथ नहीं ले रहा, इसके साथ बीटा ले रहा हूँ, देन दिस विल, सॉरी, F1 एंड F2। सो ये आपका वेक्टर B हो जाएगा एंड दिस विल बी वेक्टर A नाउ। बस इतना डिफरेंस आता है पे, जिसके साथ भी आप बीटा डिफाइन करेंगे वो A होगा और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली B हो जाएगा। ओके सर।
ओके, नेक्स्ट देखिएगा। ये हो गया, इसके बाद ट्रायंगल लॉ के बाद देखिए, ट्रायंगल लॉ पर न्यूमेरिकल टफ नहीं बनते, ट्रायंगल लॉ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं जहां सिर्फ आप ज्योमेट्री यूज करते हैं। तो मैं एक बेसिक सा न्यूमेरिकल करा रहा हूं जो आपको दिख जाएगा कि ओके, लैंग्वेज पढ़कर क्वेश्चन की कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है, ट्रायंगल लॉ यूज करना है, बट बाकी आप ज्योमेट्री से कर सकते हो। जैसे आपसे कहता है एक कार है, a displacement of 2 meter due east and then 5√2 meter due northeast. Calculate total displacement. Sir, it's 502 or 552? 5√2, 5√2, 500. So यहाँ जब आप ऐड करोगे, so this is your, इसको पहले तो हम ईस्ट वेस्ट बना देते हैं। अब सिर्फ आपको जो एक रफ स्केच बनेगा, उस रफ स्केच को देखकर ये डिसाइड करना है कि आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करोगे या आप ट्रायंगल लॉ यूज करोगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट S1, S1 है 2 मीटर ड्यू ईस्ट, then you have a displacement S2. S2 is 5√2 meter नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है ये जो एंगल है, दैट एंगल इज 45 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही कवर करेगा ना, पहले आगे जाएगा फिर कुछ और आगे जाएगा। अब बताओ ये दोनों वेक्टर्स S1 और S2 चेक करके बताओ, दे आर कोइनिशियल और इन सेम ऑर्डर? Same order. दोनों सेम ऑर्डर में। तो आप इन्हें ऐड करने के लिए अब आप एक रिजल्टेंट वेक्टर R ले लो, S क्या देते हैं, विच इज इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो आप ये ऐसे लिख सकते हो कि ये जो रिजल्टेंट S होगा, दैट रिजल्टेंट S इज द वेक्टर सम ऑफ S1 एंड S2। दिस इज योर रिजल्टेंट S। तो आप यहां से लिख सकते हो कि रिजल्टेंट S का जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, इट्स S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर। करना अब तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ रिजल्टेंट S का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है एंड ऑल्सो द डायरेक्शन। सर नॉर्थ ईस्ट से मैं 45 डिग्री ऐसे पता चला। हाँ, मैंने लिखवाया था, ये देखना जरा एक लास्ट लेक्चर का। अगर नॉर्थ ईस्ट लिखा है, दैट मींस ईस्ट और नॉर्थ को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट तभी कर सकता है जब 45 डिग्री पे जाए। ऐसे साउथ वेस्ट लिख दे, दैट मींस अगेन एंगल इज 45 डिग्री, बाइसेक्ट कर रहा है। कोई और एंगल होता तो एंगल मेंशन करता, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लिख दिया, दैट मींस बाइसेक्ट कर रहा है। करिए, इतना कैलकुलेट कीजिए, मुझे फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है। ये तो सीधी सीधी कैलकुलेशन है, तो बहुत ज्यादा इसमें सोचना भी नहीं है।
कुछ आया आंसर आप लोगों का? यस सर। चैट रूम में प्लीज लिखते जाओ। सर यू आर होस्ट। मैं क्या हूँ आज? मैं को-होस्ट हूँ। को-होस्ट भाई, मैं को-होस्ट हूँ। ओके, सूरत का आंसर आया। फाइन। और आंसर्स आयुषी? सूरत tan बीटा भी कैलकुलेट करो। tan बीटा कितना आ रहा है? लाइशा, मोहित? ओके, अर्पित का भी ठीक है, सूरत का भी ठीक है। और आंसर्स आयुषी? छोटी सी कैलकुलेशन है, कोई लेंदी काम थोड़ा ना करना है इसमें। आयुषी हुआ अब तक? चलो गुड अर्पित। बाकी लोगों को क्या हो गया? सांची आंसर क्यों नहीं आ रहा है? ओके, अच्छा सांची ने डेसिमल में कैलकुलेट किया। बाइशा, कैलकुलेशंस हुई आगे? नो सर। नहीं हो रही। ओके, आयुषी? Sir, I'm doing. You are doing. मोहित? Sir, doing. Laisha, the calculations are straightforward. Like use this relation: a square plus b square plus 2ab cos theta. So your a is s1, your b is s2, and your theta is 45 degree. Substitute करो, simple substitution है. s1 square plus s2 square twice of f1 s2 cos 45 degree. सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। ओके सूरज, चेक करते हैं। मुझे ना ये मैग्नीट्यूड तो आसानी से मुझे याद है, लेकिन डायरेक्शन याद नहीं है। अभी देखते हैं, अभी कैलकुलेट कर देता हूँ। अभी चेक करते हैं सूरज डायरेक्शन। आप 1 मिनट और वेट कर लूँ, बाकी लोगों के आंसर्स आ जाए। ओके, यस आयुषी का भी आ गया। देखो जब आप वैल्यूज रखोगे ना, इस रूट ओवर मोहित आया कुछ? s1 is 2, it's 2 square. s2 is 5 root 2. 5 root 2 square plus 2 into s1. s2, which is 5 root 2. Cos 45 is 1 by root 2, gets cancelled out. So the displacement s is, it's root over 4 plus 25 into 2 is 50 plus 4 into 5 is 20. So the magnitude of resultant is root over 74 meter. That's root 74 meter is the magnitude. इसके बाद जब आप डायरेक्शन कैलकुलेट करोगे, tan बीटा it's b sin theta over it's a plus b cos theta. अब आप चेक करो a और b क्या है।
आपने बीटा किसके साथ डिफाइन किया? S1 के साथ. सो S1 इज A और S2 विल बी योर B नाउ. वैल्यूज रख दीजिए. So your tan beta is, it's B, which is S2 sine 45, A, which is S1 plus S2 cos 45. So your tan beta comes out to be S2 कितना है? 5√2. Sine 45 is 1 by √2. S1 कितना है? 2. S2 कितना है? 5√2. Cos 45 is 1 by √2. ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ कैंसिल हो गया, tan बीटा आ गया, it's 5 by 7. So beta आया, it's tan inverse 5 by 7. This is the value of beta, tan inverse 5 by 7. So ये किसका मैच कर रहा था? अर्पित का मैच कर रहा था. सर मेरा 8.6 आया था ऊपर. 8.6 ठीक है. सांची का भी 8.6 आया था, आयुषी का भी. तो आपने इसे बेसिकली सॉल्व कर लिया ना पूरा. 8 8 जा 64. हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. अर्पित की परफॉर्मेंस बेटर होती जा रही है धीरे धीरे. चलो वेरी गुड, लिख लीजिए. लाइशा एंड मोहित, अब आया है समझ में? यस सर. चलिए आप इतना लिख लो, फिर मैं स्लाइड चेंज करता हूँ. चलिए मैं इसे चेंज कर दूंगा. सो देखो, दैट वाज पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ. अब सुनिए, यहाँ जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंट्रेंसेस में आते हैं वो ये नहीं आते कि वो आपसे दो वेक्टर्स ऐड करवाएगा. आपके पास क्वेश्चंस, दो तरह के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं. एक होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, और एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कोप्लेनर वेक्टर्स पर बनते हैं. तो पहले देखो, पहला है कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट. जीरो resultant for coplanar vectors. So coplanar vectors simply means these are those vectors which are acting in same plane. जो भी vectors एक ही plane में act करेंगे, they are coplanar. अच्छा, अब से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो काफी टॉपिक्स ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है. मैं स्टार मार्क कर दूंगा. एनसीईआरटी में ना होने का मतलब है आपके स्कूल एग्जाम्स में आने के चांसेस नहीं है, बट टॉपिक्स नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ. सो कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट फॉर कोप्लेनर वेक्टर मींस आप तीन वेक्टर्स को ऐड करेंगे और रिजल्टेंट वुड बी जीरो. कोप्लेनर का मतलब है वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन सेम प्लेन. मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था. अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन से वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो आप जिस रूम में बैठे हुए हो वहां 4 वॉल्स होंगी. हर वॉल अपने आप में एक प्लेन है. आप एक वॉल में सारे वेक्टर्स ड्रॉ कर दीजिए, वो सब कोप्लेनर होंगे. आप दूसरी वॉल पर वेक्टर्स ड्रॉ कर दीजिए, वो कोप्लेनर होंगे. लेकिन एक वॉल और दूसरे वॉल के वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है. एक वॉल में आप जितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सारी लाइंस कोप्लेनर. सो इफ यू हैव 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, और मैं आपसे कह रहा हूं इन तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स को आप सम अप करोगे और इनका सम 0 आएगा. a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. अब जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ इसी के ऊपर है. ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये थ्योरी का पार्ट नहीं होता है. ये बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं जिसे हम थ्योरी में ब्रेक करके पढ़ते हैं. a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. अब से बहुत कुछ ऐसा आएगा जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है. दैट मींस आप a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी कुड बी रिटन एज माइनस ऑफ सी नाउ. तो अगर यहाँ मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई करूं, माइनस सी का क्या मतलब है? सी और माइनस सी में डिफरेंस क्या होता है सांची? अगर ये वेक्टर सी है तो माइनस सी कहां होगा सांची? ऑपोजिट डायरेक्शन में ना. The difference between C and minus C is that of direction vector C
and minus C have opposite direction. They act in opposite directions. So this is vector A and this is vector B. इनके रिजल्टेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल. रिजल्टेंट को आप थर्ड साइड से रिप्रेजेंट करते हैं और वो थर्ड साइड ऐसी होती है. दिस इज सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये थर्ड साइड. जो माइनस सी वेक्टर होगा ना, वो माइनस सी वेक्टर इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. जो माइनस सी होगा वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो अगर आप तीन वेक्टर्स लो, वेक्टर ए, वेक्टर बी and vector C. This is vector A, this is vector B, and this is vector C. अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, A प्लस बी का सम C के इक्वल नहीं है. A प्लस बी का सम किसके इक्वल है? माइनस C के इक्वल है. माइनस C का क्या मतलब है? जस्ट चेंज द डायरेक्शन, रिवर्स कर दो डायरेक्शन. ये है माइनस. सो अगर तीन वेक्टर्स हैं जिसको आप ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सारी साइड सेम ऑर्डर में, देखो हेड और टेल को इंसाइड कर रहा है, यहां भी हेड और टेल को इंसाइड कर रहा है, यहां भी हेड और टेल को इंसाइड कर रहा है. सो अगर तीनों वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, सब सेम ऑर्डर में, तो इन तीनों का जो सम होगा दैट सम विल बी 0. तो आप ऐसे लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0. तो याद रखिएगा, इफ थ्री वेक्टर्स acting at a point is represented by sides of triangle in same order, सब सेम ऑर्डर में, तो इन तीनों का जो सम होगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. वो आपको ड्रॉ करके दे देगा तीन वेक्टर्स बाय द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर. इसका मतलब ही ये है कि दो का सम तीसरे के नेगेटिव के इक्वल हो, तो आप इन तीनों के सम को 0 लिख सकते हैं. एक और चीज याद रखिएगा, तीन कोप्लेनर वेक्टर्स का सम तभी, अच्छा आर मैक्स क्या होगा अगर ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं, यू हैव अ वेक्टर ए, वेक्टर बी और एक वेक्टर सी है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हुए हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, एक ए दिया है और एक बी दिया है. मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा ए और बी का, कुछ याद है? व्हाट इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी? आर मैक्स क्या होगा सर? रिजल्टेंट ही हाँ सर हमेशा मैक्सिमम होगा या कुछ कंडीशंस होती हैं? आर मैक्स होगा ए प्लस बी, इसे आर मैक्स कहते हैं. आर मिनिमम होगा ए माइनस बी, ये भी डिस्कस किया था ना. अगर पैरेलल है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, एंटी पैरेलल है तो मिनिमम होता है. अगर तीन वेक्टर्स का सम 0 है, if sum of three vector is 0, तो ये तभी पॉसिबल है जब थर्ड वेक्टर मिनिमम से तो ज्यादा हो लेकिन मैक्सिमम वैल्यू से कम हो, तभी तीन वेक्टर्स का सम 0 आ पाएगा. आपको क्वेश्चंस दिखेंगे जहां वो तीन फोर्सेस दे देगा, कहेगा क्या पॉसिबल है कि इन तीन फोर्सेस का सम 0 हो जाए, तो आप चेक करोगे दो दो के पेयर्स लेकर, मैक्सिमम निकालोगे मिनिमम निकालोगे. जो सी वेक्टर होगा थर्ड वेक्टर, वो मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम से कम होना चाहिए, सो दैट देयर सम इज 0. इसे लिखिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं. सो 0 रिजल्टेंट मींस तीन वेक्टर्स का सम 0 होगा, दैट 0 रिजल्टेंट. ज्योमेट्रिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बाय द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर.
ए और बी अगर दो वेक्टर्स दे दिए और एक सी वेक्टर दे दिया, मैं आपसे कह रहा हूं इनका सम 0 है, तो उसकी कंडीशन ये है कि आप किसी दो को ऐड कर मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट निकालो। तो जो सी होगा थर्ड, वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। अगर वो मैक्सिमम को एक्सीड कर गया तो 0 रिजल्टेंट नहीं हो सकता। इतना लिखिए, मैं क्वेश्चंस लिखता हूं। इतना लिख लो तो बताओ, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चेंज कर दूं स्लाइड? सर ए प्लस बी पैरेलल में होता है और ए माइनस बी एंटी पैरेलल। जब हम मैक्सिमम लिखते हैं इसका मतलब यही था कि वेक्टर्स पैरेलल थे। जब ए माइनस बी लिखते हैं दैट मींस वेक्टर्स एंटी पैरेलल। देखो ये देख के लगता है पता नहीं क्या लिख दिया, बहुत इजी चीज है। इसको चेंज करूं स्लाइड में? एक एग्जांपल मैं करूंगा, उसके बाद आप खुद करना शुरू कर दो। एक सेकंड बस थोड़ा सा लिखना है। ये वो सेक्शन है जहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट एंट्रेंसेस में। वेक्टर से ये नहीं पूछता पैरेललोग्राम लॉ क्या है, ट्रायंगल लॉ क्या है। ये वाला पोर्शन है जहां से कुछ पूछ लेता है आपसे। यस सर, इट है। सो मैं आपको 3 फोर्सेस दे रहा हूं। F1 is 1 न्यूटन, F2 is let's say 3 न्यूटन, F3 is let's say 7 न्यूटन। मैं आपसे कहता हूं डिसाइड whether their sum can be 0 or not। आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों तीनों को ऐड करने के बाद सम 0 आएगा या नहीं। तो दो दो के पेयर्स बना लो। पहला मैं एक ऐसे लिख लेता हूँ, F1 F2 इन दो को ले लेता हूं और एक तीसरा F3 हो जाएगा। F max जो आएगा आपका, वो F max आएगा 1 + 3 कर F max आएगा 4। जब आप F मिनिमम लोगे तो F मिनिमम आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक स्टेप और, F max होगा F1 + F2। 1 + 3 हो गया 4। F मिनिमम जो होगा that will be F2 minus F1। It's 3 - 1 is equal to 2 न्यूटन। तो आपकी जो थर्ड फोर्स है ना ये F3, F3 इस F max और F मिनिमम के बीच में। तो आप लिख सकते हो दिस F3 होनी चाहिए कि F3 जो होना चाहिए दैट शुड बी इन बिटवीन F3 F मिनिमम एंड F max। अगर ये F3 F मिनिमम और F max के बीच में, तब तो सम 0 होगा। लेकिन अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो सम 0 नहीं होगा। तो यहां देखो आपका जो F3 आया है, F3 कितना है 7, ये F max से ज्यादा हो रहा है। दैट मींस अगर आप इन तीन फोर्सेस को किसी भी तरह से ऐड कर लो तो नेट 0 नहीं आएगा। आपका जो F3 है दैट F3 इज ग्रेटर देन F max। दैट मींस सम कैन नॉट बी 0। आप ऐसे कई पेयर्स बनाकर चेक करोगे। एक बार आपने F1 F3 बना लिया, फिर आप एक बार F1 और F2 को सम अप करके देखोगे, फिर F3 और F4 F2 और F3 को सम अप करके देखोगे कि सब जगह ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। एक और एग्जांपल, F1 है 3 न्यूटन, F2 है लेट्स से 7 न्यूटन, और 7 मत लो 4 ले लो, और F3 है 2 न्यूटन। चेक कीजिए क्या यहाँ रिजल्टेंट 0 आ सकता है, चेक करो। और ऐसे ही चेक करना, पहले एक F max कैलकुलेट करना, फिर एक F मिनिमम कैलकुलेट करना। थर्ड फोर्स F मिनिमम से ज्यादा होनी चाहिए, F max से कम होनी चाहिए। ऐसा हो रहा है तो सम 0 होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता।
ये शॉर्टकट टेक्निक्स है, इसे करने के लेंथी मेथड्स भी हैं जो आप लॉस ऑफ मोशन में सीखोगे कि एक्चुअल में जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है। वो इक्विलिब्रियम में हम स्टडी करेंगे, शॉर्टकट टेक्निक्स हैं। चेक करके बताओ मुझे यहाँ, क्या ये 0 हो सकता है या नहीं हो सकता? सिर्फ इतना सर हो सकता है। हो सकता है। किसका आया ये? सच सूरत सर सांची। सांची का। ओके, और लोग चेक करो। आयुषी यस सर। सर 0 हो सकता है। 0 हो सकता है। क्या लगता है अर्पित? यस सर। 0 होगा या नहीं होगा? सर एक सेकंड में कर रहा था। कोई दो ऐड करो, दो दो के पेयर्स ले लो, ऐड कर कर और देखते चले जाओ कि तीसरे से कम ज्यादा रिजल्टेंट्स मैक्सिमम से कम है या नहीं। तो देखो मैं 3 तरह से एफ मैक्स लूंगा। एक बार मैं एफ मैक्स लूंगा F1 और F2 ऐड करके, F1 है 3, F2 है 4, 7 आ गया। एफ मिनिमम इनको सब्ट्रैक्ट करके ले लेते हैं, F2 माइनस F1, 4 माइनस 3 इज 1 न्यूटन। तो जो थर्ड है आपका F3, एफ मिनिमम से ज्यादा है एंड इट्स लेस देन एफ मैक्सिमम, हो सकता है बिल्कुल नेट 0 आ सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, एफ मैक्स जो है F1 और F2 की जगह आप F1 प्लस F3 ले सकते हैं। 3 प्लस 2 5 न्यूटन। एफ मिनिमम आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 न्यूटन। तीसरा कौन सा बचा आपका? F2। तो F2 इज ग्रेटर देन एफ मिनिमम, देखो 4 है ना, इससे ज्यादा है, एंड लेस देन एफ मैक्स। यहां भी हो सकता है। तीसरा, हर पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है। F1 F3 F1 F2 ले लिया था, अब आप F2 और F3 चेक करोगे। So your F max comes out to be F2 F3, 4 plus 2 is 6. F minimum check करोगे, 4 minus 2 is 2. सर ये बस वेरीफाई करने के लिए है ना, वरना जरूरी थोड़ा तीनों दिखाने पड़ेंगे एक से। ना, ये तो जस्ट वेरीफाई करने के लिए, आपको अपने सेटिस्फेक्शन के। तो ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, आपको डिसाइड करना होगा कि है। सो ये क्लियर हुआ? Yes, sir. सो ये शायद टेस्ट में भी मैंने डाला था क्वेश्चन लास्ट संडे, शायद मैंने किसी एक टेस्ट में डाला हुआ है। ये इस संडे आपको दिख जाएगा। तो आपको अलग अलग पेयर्स देगा फोर्सेस के, और आपसे कहेगा डिसाइड करो इसमें से किस में रिजल्टेंट 0 हो सकता है। फोर्स ही नहीं, कुछ भी दे देगा, कहेगा 3 वेक्टर्स हैं ABC। तो आप ये ट्रिक यूज करो। अदरवाइज इसे करने का जो एग्जैक्ट मेथड है, दैट्स इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, दैट वी विल डू इन चैप्टर नंबर 4 में आएगा वो सब। ऐसे लिख लीजिए। आई थिंक आज का टाइम तो ओवर हो गया। ट्राइंगल लॉ इज ओवर, जस्ट पॉलीगन लॉ रह गया। Polygon law and resolution of vector, that we will complete in the next class. So 2-3 more lectures और ये vectors complete हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज विल स्टॉप हियर। सर मेरे को एक असाइनमेंट के क्वेश्चन में डाउट था। हाँ अर्पित बताओ। सर वो मैंने क्वेश्चन एक सेकंड नोट कर रखा है, बताता हूँ। सर वो क्वेश्चन था, इफ a वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप and b vector is equals to 7i cap and plus 24j cap, find a vector having the same magnitude as b vector and parallel to a vector. तो a is 3i cap plus 4j cap, b कितना है? सर b is 7i cap plus 24j cap. तो आपको एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? सर मैग्नीट्यूड इज सेम एज b वेक्टर। b का मैग्नीट्यूड b मॉड ले लो, और डायरेक्शन किसका हो? सर एंड पैरेलल टू a। पैरेलल टू a का मतलब है a का डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए आप कौन सा वेक्टर यूज करते हो? यूनिट वेक्टर। यस सर। तो b का मैग्नीट्यूड लो और a के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं ना? b का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे अर्पित? सर मल्टीप्लाई मतलब अरे देखो कितना आसान है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना आसान काम है ना। जब आप b का मैग्नीट्यूड लोगे, b का मैग्नीट्यूड इज रूट ओवर 7 स्क्वायर, 24 है ये, 24 स्क्वायर हो गया। ठीक। यस सर। a का यूनिट वेक्टर आप कैसे बनाते हो? वेक्टर a लेते हो और उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ही होता है। यस सर। तो a क्या था? 3i कैप प्लस 4j कैप।
मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का हो, सो इट्स वेक्टर मैग्नीट्यूड बी लिया आपने, और डायरेक्शन किसका हो, ए का डायरेक्शन होता है, एक कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ठीक है, चलो सो ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर, थर्सडे को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, असाइनमेंट्स थोड़ा सा डिसकंटिन्यू होंगे, असाइनमेंट्स के पैटर्न में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसीलिए शायद लास्ट, अगर शायद नहीं आ पाया कोई एक असाइनमेंट, एक आध असाइनमेंट मिस हो सकता है, थोड़ा सा एक मेजर शिफ्ट हो रहा है पैटर्न में, उसके बाद फिर